آج کے اس کلاس میں ہم نہم جماعت کا کثیر رکنیہ یعنی پولینومیلز مشق نمبر 4.1 پوری حل کریں گے۔ تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا بچوں، آپ آخری تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ ویلکم ہے آپ سب کا ہمارے چینل JF میم پہ۔ پہلا کوشچن کچھ اس طرح سے ہے، مندرجہ ذیل میں کون سی عبارتیں ایک متغیر والی کثیر رکنیہ ہے اور کون سی نہیں؟ اپنے جواب کی وجوہات بھی بیان کیجیے۔ یہاں پر دیکھیے ایک متغیر والی کثیر رکنیہ ہمیں دیکھنا ہے اور وہ کثیر رکنی ہے کہ نہیں بتانا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک متغیر بول کے لکھے ہوا ہے۔ متغیر بولے تو ایسے حرف یا علامت جس کی قیمت بدلتی رہتی ہے۔ جنرلی ہم سمجھیں گے عام طور پہ تو کوئی بھی انگلش کا الفابیٹ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ایک کثیر رکنی میں متغیر جو ہوتا ہے وہ انگلش کے الفابیٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں ایک کثیر رکنی لکھ رہی ہوں، دیکھیے یہ ایک کثیر رکنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کتنے متغیر ہیں؟ جی ہے، یہاں پر ایک ہی متغیر ہے، وہ ہے ایک۔ اور دوسرا ہے ہمارے پاس پہلی کنڈیشن ایک متغیر ہونا چاہیے، تو ایک متغیر ہے ہمارے پاس ایکس ہے، اور متغیر کی جو قوت ہوتی ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، مکمل عدد ہونی چاہیے۔ مکمل عدد کو ہم سالم عدد بھی کہتے ہیں۔ مکمل عدد کون سے ہوتے ہیں؟ 0، 1، 2، 3، 4 اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو کنڈیشن ہم پورے کوشچنس پہ دیکھیں گے۔ پہلی کنڈیشن دیکھنا ہے آپ کو، ایک متغیر ہے کہ نہیں۔ دوسری کنڈیشن دیکھنا ہے کہ متغیر کی قوت سالم عدد یا مکمل عدد ہے کہ نہیں۔ یہ دو کنڈیشن فالو کر کے ہم تمام کوشچن میں دیکھیں گے کہ وہ کثیر رکنی ہے کہ نہیں۔ چلیے کوشچن کی طرف چلیں گے۔ پہلا کوشچن اس طرح سے ہے، یہاں پر دیکھیے متغیر کتنے ہیں؟ متغیر بولے تو انگلش کے الفابیٹ، تو یہاں پر متغیر ایک ہی ہے یعنی کہ ایکس ہے، اور ایکس کی قوت 2 ہے۔ 2 مکمل عدد ہے کہ نہیں؟ ہاں مکمل عدد ہے، تو یہ کثیر رکنی ہے۔ یہ کثیر رکنی ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک ہی متغیر ہے اور اس کی قوت مکمل عدد ہے۔ نیکسٹ یہاں پر دیکھیں گے کتنے متغیر ہیں، یہاں پر ایک ہی متغیر ہے y، اور اس کی قوت 2 ہے۔ 2 کیا ہے؟ مکمل عدد ہے کہ نہیں دیکھیں گے ہم۔ ہاں 2 مکمل عدد ہے، تو ہم یہ لکھیں گے یہاں پر یہ بھی کثیر رکنی ہے۔ یہ کثیر رکنی ہے کیونکہ ایک ہی متغیر ہے اور اس کی قوت مکمل عدد ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہاں پر دیکھیے جزر آیا ہے، تو جزر کی قیمت ہم آپ کو ڈال کے دکھائیں گے تو کوشچن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ٹی جزر کے اندر ہے، تو ٹی کی 1/2 جمع ٹی جزر 2۔ پہلی کنڈیشن ہم یہاں پر دیکھیں گے، کیا ایک متغیر ہے؟ جی ہاں ایک ہی متغیر ہے، وہ ہے ٹی۔ نیکسٹ دیکھیں گے اس کی قوت مکمل عدد ہے یا نہیں، تو جی نہیں، یہاں پر 1/2 ہے، 1/2 مکمل عدد نہیں ہے۔ مکمل عدد کون سے ہوتے ہیں ہمارے؟ 0، 1، 2، 3، 4، 5 اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں لکھیں گے یہ کثیر رکنی نہیں ہے کیونکہ متغیر کی قوت مکمل عدد نہیں ہے۔ نیکسٹ چلیں گے، اور 2 کوشچن یہاں پر باقی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اس کو بھی تھوڑا میں سمپلیفائی کر کے لکھی تو آپ کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ y جیسے کا ویسا لکھیں گے،
2 जैसे का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए y नीचे आया है, बटे में आया है, तो उसको ऊपर लाएंगे तो उसकी कीमत होती है -1। तो यहाँ पर पहली कंडीशन चेक करेंगे, एक मुतग़य्यर है। हाँ जी हाँ, एक मुतग़य्यर है, y है, मगर उसकी क़ुव्वत देखिए यहाँ पर -1 है। हमें मुतग़य्यर की क़ुव्वत कैसी होनी चाहिए? मुकम्मिल होनी चाहिए। मुकम्मिल नहीं है ये। मुकम्मिल आदाद कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 इस तरह से। मुकम्मिल आदाद में मनफी नहीं आते। तो यहाँ पर लिखेंगे ये कसीर रुकनी नहीं है, क्योंकि मुतग़य्यर की क़ुव्वत मुकम्मिल आदाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन देखेंगे हम, क्या एक मुतग़य्यर है? नहीं। यहाँ पर देखिए x, y, t, तो कितने मुतग़य्यर हुए? अलग अलग हो गए ये। तो ये यहाँ पर हो गए 3 मुतग़य्यर। तो पहली कंडीशन ही यहाँ पर गलत हो रही है, तो ये लिए यहाँ पर लिखेंगे हम ये कसीर रुकनी नहीं है, क्योंकि 3 मुतग़य्यर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, मंदरज झैल हर एक में x की दूसरी यानी x² का ज़रीब मालूम कीजिए। अब ये ज़रीब के माने समझिए। ज़रीब माने ज़रब से ज़रीब है, तो x² के साथ जो ज़रब में लगे हुआ है वो मालूम करना है हमें। तो यहाँ पर हम जनरली ऐसे समझेंगे कि x की दूसरी के साथ जो भी नंबर लगे हुआ है वो उसका ज़रीब होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर है हमारा x²। x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो 1 है, यहाँ पर इस तरह से कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम डालेंगे 1। चलिए यहाँ पर देखिए x² नंबर नहीं है तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर 1। तो x² का साथ में क्या लगे हुआ है? -1। ज़रीब, ज़रीब बोले तो उसके साथ का नंबर देखेंगे यहाँ पर जो ज़रब में लगे हुआ है। अब यहाँ पर देखिए x² के साथ क्या लगे हुआ है? π/2। अब यहाँ पर x² है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे कि x² का ज़रीब क्या है? 0। क्योंकि यहाँ पर x² है ही नहीं तो हम क्या डालेंगे? x² का ज़रीब 0। तो ये सवाल नंबर 2 हल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, 35 दर्जे वाली 2 रुकनी, 35 दर्जे वाली 2 रुकनी और 100 दर्जे वाली 1 रुकनी। 35 दर्जा वाली 2 रुकनी यानी कि उसमें 2 रुकन होना चाहिए, और 100 दर्जे वाली 1 रुकनी की एक मिसाल देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है बच्चों। 35 दर्जा बोले तो हम मुतग़य्यर क्या डालेंगे? 35 डालेंगे। सिंपल है। बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रुकन होना है तो और 1 रुकन लगा लेंगे हम। ठीक है, 2 रुकनी हो गया और उसके दर्जा कितना हुआ? 35। तो ये 2 रुकनी 35 दर्जे वाली 2 रुकनी हो गई। और एक लिख कर बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं आप, मुतग़य्यर कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे p। ठीक है, p की क़ुव्वत 35 डालेंगे, जमा 4। देखिए ये 1 रुकन हो गया, ये 2 रुकन हो गया, और दर्जा कितना हुआ? 35। एक और लिख कर बताऊँगी मैं। और क्या लेंगे हम? अल्फ़ाबेट t। ठीक है, t 35 डालेंगे, मनफी डालेंगे 5t। कोई बंदिश नहीं है आपको यहाँ पर, सिर्फ पहला जो हुर्फ ले रहे हैं आप, जो पहला मुतग़य्यर ले रहे हैं उसको 35 डालिए, आगे कुछ भी नंबर लगा ले सकते हैं। तो 1 लिखना था, हमने 2-3 लिख के बताया आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 100 दर्जे वाली। 100 दर्जा बोले तो मुतग़य्यर का कितना लगाना? हम क़ुव्वत 100 लगाना। यहाँ पर 35 दर्जा था तो हमने 35 लगाया। अब यहाँ पर 100 दर्जा लगाना है तो हम क्या करेंगे? मुतग़य्यर की क़ुव्वत 100 रखेंगे। 1 रुकन होना चाहिए यहाँ पर।
तो यहाँ पर लिखेंगे वाई। मुतग़य्यर कौन सा भी ले सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से। अब इसका दर्जा 100 होना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दर्जा 35 था तो हमने 35 लगा लिया। अब दर्जा यहाँ पर 100 है तो 100 लगा लेंगे। एक रुकनी होना है यहाँ पर, एक रुकन, तो ये एक रुकन हो गया। यहाँ पर 2 रुकनी थी तो देखिए 1 2 रुकन हो गए, 1 2 रुकन हो गए। अब यहाँ पर एक रुकनी बता एक ही मुतग़य्यर लिखेंगे। एक और एग्जांपल लिखेंगे, Z की क़ुव्वत 100। कुछ भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर ले सकते हैं मगर उसकी क़ुव्वत कितनी लगाना है, 100। यहाँ पर लेंगे A। ठीक है, इस तरह से एक एक के ही लिखना था, हमने 3 लिखा है आपके लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। चौथा क्वेश्चन, मंदरज झैल हर एक कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए। अब यहाँ पर दर्जा जो होता है, देखिए मुतग़य्यर को देखेंगे हम, यह मुतग़य्यर x है। पहले देखिए यह x की तीसरी है, यहाँ पर x की दूसरी है और यहाँ पर x पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कीमत लेना, x की बड़ी कीमत लेना, वो हमारा कसीर रुकनी का दर्जा होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो हम दर्जा लिखेंगे यहाँ पर 3। नेक्स्ट यहाँ पर मुतग़य्यर एक ही है, यहाँ पर y, तो उसकी क़ुव्वत है यहाँ पर 2, तो उसका दर्जा होगा 2। अब यहाँ पर देखिए t एक ही है, t के ऊपर कुछ क़ुव्वत नहीं है तो वो क्या होता, 1 रहता, तो यहाँ पर दर्जा डालेंगे 1। और यहाँ कसीर रुकनी में आपको सिर्फ 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ मुतग़य्यर ही नहीं है तो हम उसका कसीर रुकनी का क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मंदरज झैल के ख़तई 2 दर्जी और मुकाब कसीर रुकनी की दर्जा बंदी कीजिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। ख़तई माने ऐसे मुतग़य्यर होना कसीर रुकनी में जिसका दर्जा 1 होना चाहिए। यहाँ पर 2 दर्जी है तो ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 होना चाहिए। और मुकाब रुकनी या फिर सै रुकनी भी कहते हैं इसको, यानी ऐसे कसीर रुकनी जिसका दर्जा 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये कसीर रुकनी है। ठीक है, यहाँ पर मुतग़य्यर की क़ुव्वत कितनी है, 2 है, तो हम लिखेंगे इसको 2 दर्जी। हाँ, यहाँ पर देखिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर x की क़ुव्वत 1 आती है तो इसको ख़तई नहीं बोलेंगे हम। यहाँ पर जो बड़ा क़ुव्वत होती है उसको देखेंगे, उसको देख के लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा ये है तो उसका दर्जा 3 है यहाँ पर, तो 3 को लिखेंगे हम मुकाब कसीर रुकनी। यहाँ भी कसीर रुकनी लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए y की क़ुव्वत 1 है, यहाँ y की क़ुव्वत 2 है तो 2 बड़ा है, 2 बड़ा रहे तो हम क्या लिखेंगे इसको, दर्जा भी उसका 2 होगा तो 2 दर्जी कसीर रुकनी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, समझ के चलना चाहिए। तो ये होगा x एक ही है यहाँ पर और उसकी क़ुव्वत 1 है तो ये होगा ख़तई कसीर रुकनी। इसमें और थोड़े क्वेश्चन हैं, देखेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे t की क़ुव्वत कुछ भी नहीं है तो 1 है यहाँ पर, तो ये कौन सा होगा, ख़तई कसीर रुकनी। नेक्स्ट है यहाँ r की क़ुव्वत 2 है तो ये 2 दर्जी होगा, 2 दर्जी कसीर रुकनी। यहाँ पर 3 होगा, 3 को लिखेंगे हम मुकाब कसीर रुकनी। तो ये था हमारा मश्क नंबर 4.1। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की मश्क हल करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।